Welcome to DSEJ Home Classes, an attempt to connect learner with instructor, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Myself, Sabir Hussain, teacher, GHSS, Punch. Dear students, today we are going to discuss a short story, Old Man at the Bridge by Ernest Hemingway. Here is the introduction about the author. He was born in 1899 and died in 1961, an American novelist and short story writer. His important works include The Sun Also Rises, A Farewell to Arms, For Whom the Bell Tolls, Old Man at the Sea. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1954. This is the first part, one phase of about the author. The second phase is in World War First, 1914 to 1918. Hemingway served as a volunteer ambulance driver in Italy. After the war, he served as a correspondent for Toronto Star and then settled in Paris. In World War II, 1939 to 1945, he again was a correspondent and later a reporter for the United States First Army. Although he was not a soldier, he participated in several battles. Okay, now let us see what is in the story, what the story is all about. Remember, students, don't forget to read and understand the inbox which you are watching here. How do words change our lives, our minds, and our daily routine? It means that this is about a war. Read the story and find out how wars disturb everything and make us anxious and panicky. Okay? Here is the picture of Hemingway. Dear students, now we are going to read the story Old Man at the Bridge. First of all, I want to tell you the story is based on a true incident that Hemingway has witnessed as a reporter during the Spanish Civil War. The story emphasizes upon the reality that it is the common man, common people who have to suffer the most during a war in spite of the fact that they are innocent. Let's start. Ernest, an old man here. An old man with steel rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. There was a pontoon bridge across the river, and cars, trucks, and men, women, and children were crossing it. जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टोरी जो है एक जंग जो वाली सिचुएशन होती है उसके बारे में लिखी गई है। इसमें ऑथर जो है वो लिखता है कि एक बूढ़ा आदमी है जो एक स्टील रिम्ड स्पेक्टल होते हैं जिसका जो फ्रेम होता है ना वो स्टील का होता है और वेरी डस्टी क्लॉथ्स एक पुल के ऊपर जो बैठा हुआ है। देयर वाज अ पॉन्टोन ब्रिज जो होता है ये टेम्परेरी ब्रिज होता है। ये जंग के दौरान जो है आमतौर पर बनाया जाता है, इसको फ्लोटिंग ब्रिज भी कहते हैं। अक्रॉस द रिवर कार्स, ट्रक्स, मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन वर क्रॉसिंग इट, जिसको क्या कर रहे हैं लोग जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। द म्यूल ड्रॉन कार्स स्टैगर्ड अपॉन द स्टीप बैंक फ्रॉम द ब्रिज वेयर सोल्जर्स हेल्पिंग टू पुश अगेंस्ट द स्पोक्स ऑफ द व्हील्स। अब इसमें क्या है, म्यूल होता है ये जो खच्चर होते हैं ना जो कार्ट को खींचते हैं, छकड़े को खींचते हैं, उसके ऊपर लोग सामान लाद के ले जा रहे हैं और जो आर्मी है वहाँ पे सोल्जर जो हैं वो उनकी मदद करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो कोई जगह है ख़ास स्पेसिफिक जहाँ पर एनिमीज़ के आने का ख़तरा है और वो जो जगह है उसको वो वकेट करवा रहे हैं और लोगों को निकलने के लिए कह रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। द पीजेंट्स प्लॉडेड
अगेंस्ट इन द एंकल डीप डस्ट। अब इसमें क्या है, जो फार्मर्स वगैरह जो है ना वो कच्चा पात से हो के आ रहे हैं, इसलिए उनके कपड़े भी जो हैं वो डस्ट से भरे हुए हैं। एंकल एंकल मतलब टखने तक जो है कपड़े मिट्टी से भरे होते हैं। बट द ओल्ड मैन सैट देयर विदाउट मूविंग। लेकिन जो बूढ़ा आदमी है उसके बावजूद भी वो वहीं पे बैठा हुआ है। ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर। वो इतना थक गया है कि वो आगे नहीं जा सकता। इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज। अब आपने याद रखना है कि इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं। एक कैरेक्टर है ओल्ड मैन जो पुल पे बैठा है, और दूसरा जो है वो कौन सा है, ये जो नरेटर है। जैसे मैंने आपको बताया ना, इसकी ज़िंदगी में लिटरेचर वगैरह लिखने के, पोइम्स, नावल लिखने के अलावा जो है इसने बहुत सी बैटल्स में पार्टिसिपेट किया है, वर्ल्ड वार फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। अगर ये सोल्जर नहीं भी था लेकिन उसके बावजूद भी ये इनमें हिस्सा लेता रहा। इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज, एक्सप्लोर द ब्रिज हेड बियॉन्ड एंड फाइंड आउट टू व्हाट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस। अब ये कहता है नरेटर, ये मेरा काम था कि लोगों को मैं ब्रिज क्रॉस करवाता और मैं साथ में ये भी देखता कि एनिमीज़ जो हैं वो कितना आगे आ चुके हैं, उन पे भी एक नज़र रखता। आई डिड दिस एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज। देयर वर नॉट सो मैनी कार्स नाउ एंड वेरी फ्यू पीपल ऑन फुट, बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर। कहता है मैं जब वापस वहाँ पे पुल पे आया तो मैंने देखा बहुत कम लोग रह गए थे, लेकिन जो बूढ़ा आदमी था वो अभी भी उसी जगह पे है। अब जो इनके बीच में जो है वो कन्वर्सेशन शुरू होती है। अब जो नरेटर है वो उसको पूछता है, वेयर डू यू कम फ्रॉम, आई आस्क्ड हिम। ये यहाँ पे है, ठीक है। वो उसको पूछता है कि आप कहाँ से आए हो। अब ये जो बूढ़ा आदमी होता है ये क्या करता है, ये कहता है यहाँ से, ये इसको कहता है कि फ्रॉम सैन कॉर्लस। मैं भी किताब से देख के पढ़ रहा हूँ आपके सामने, और किताब जो है, बुक जो है आपकी, टेक्स्ट बुक आपके सामने होनी चाहिए जब हम आपको पढ़ाते हैं। फ्रॉम सैन कॉर्लस, तो बूढ़ा आदमी जो है ही सैड एंड स्माइल्ड, वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं सैन कॉर्लस से आया हूँ। दैट वॉज हिज नेटिव टोन, सो इट गेव हिम प्लेजर टू मैंशन इट एंड ही स्माइल्ड। अब नरेटर कहता है कि मुझे लगता है वो उसका नेटिव टोन था, तो तभी उसके चेहरे पे ये नाम बताते हुए मुस्कुराहट आई। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ही एक्सप्लेन। अब बूढ़ा आदमी जो है बिना कुछ पूछे उसको कह रहा है कि मैं वहाँ पे क्या कर रहा था, एनिमल्स जो है उनको उनकी देखभाल करता था। ओह, आई सैड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग। अब नरेटर उसको कहता है मैं कुछ समझा नहीं। यस, ही सैड, आई स्टेड, यू सी, टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। I was the last one to leave the town of San Carlos। कहता है मैं वहाँ पर एनिमल्स की देखभाल करता था, और I was the last one, मैं आखिरी आदमी हूँ जिसको वहाँ से निकाला गया है, सैन कॉर्लस से। He did not look like a shepherd nor a herdsman, and I looked at the black dusty clothes and his grey dusty face and his steel rimmed spectacles and said, what animals were they? अब ये नरेटर जो है वो सोचता है कि शक्ल से तो ये शेफर्ड लगता नहीं है, ना ही हर्ड्समैन लगता है, और वो कहता है कि मैं इसके वो जो कपड़े हैं उनकी तरफ देखता हूँ, इसके चश्मे की तरफ देखता हूँ, इसके ग्रे जो है फेस, डस्टी फेस, उसकी तरफ देखता हूँ। फिर मैं पूछता हूँ उसको कि व्हाट एनिमल्स वर थे, वो एनिमल्स क्या थे। पहले ये सोचता है नरेटर शायद ये कोई बहुत बड़ा कैटल्स इसके पास होते, बहुत ज़्यादा नंबरिंग में, और उसके बाद या इसके पास शेफर्ड होते। वेरियस एनिमल्स, ही सैड एंड शूक हिज हेड। वो कहता है बहुत सारे एनिमल्स, और अपना सर हिलाता है वो। आई हैड टू लीव दैम, मुझे उनको छोड़ना पड़ा। आई वॉज वॉचिंग द ब्रिज एंड द अफ्रीकन लुकिंग कंट्री ऑफ द एब्रो डेल्टा एंड वंडरिंग हाउ लॉन्ग नो इट वुड बी बिफोर वी वुड सी द enemy, and listening all the while for the first noises that would signal that ever mysterious event called contact, and the old man still sat there। ये कहता है कि मैं इससे बातें करते करते वो पुल की दूसरी तरफ भी देख रहा है जहाँ पर एनिमीज के आने का खतरा है। एब्रो डेल्टा जो है ये पुल है, दरिया है जिसके ऊपर ये पुल बना हुआ है। और ये कहता है कि मैं इससे बात भी कर रहा हूँ और साथ में मैं नज़र भी रख रहा हूँ, क्योंकि ये एज ए रिपोर्टर वहाँ पे जो है इस वॉर में क्या कर रहा है, काम कर रहा है।
व्हाट एनिमल्स वर दे, आई आस्क्ड, मैंने फिर पूछा उसको कि कौन से। देयर वर 2 गोट्स एंड ए कैट एंड देन देयर वर 4 पेयर्स ऑफ पिजन। वो कहता है 2 बकरियां, एक बिल्ली और 4 जोड़े जो थे वो कबूतरों के थे। एंड यू हैव टू लीव दम, आई आस्क्ड, मैंने उसको पूछा और तुम्हें वो छोड़ना पड़ा? तो आगे जो ओल्ड मैन है वो कहता है यस बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, द कैप्टन टोल्ड मी टू गो बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी। कहता है हाँ, मुझे जो आर्मी का जो कैप्टन था आपका, उसके कहने पे मुझे वो छोड़ना पड़ा। उसने कहा कि ये जगह सेफ नहीं है, आप निकलो यहाँ से। एंड यू हैव नो फैमिली, आई आस्क्ड, मैंने उसको फिर पूछा कि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है? Watching the far end of the bridge where a few lost carts were hurrying down the slope of the bank, जहाँ पर कुछ चंद ही जो थे कार्ट जो हैं वो बचे हुए हैं जिन्होंने आगे निकलना था लोगों के लेकर। तो वो कहता है कि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है? नो ही सैड ओनली द एनिमल्स आई स्टेटेड, कहता है मैंने बताया आपको कि सिर्फ एनिमल्स। द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑलराइट, वो कहता है बिल्ली तो ठीक ही होगी। ए कैट कैन लुक आउट फॉर इट, a cat can look out for itself, but I cannot think what will become of the others। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही टचिंग स्टोरी है ये, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ोगे। कहता है वो तो ठीक है, बिल्ली तो अपना ख्याल रख पाएगी, लेकिन बाकियों का क्या होगा? व्हाट पॉलिटिक्स हैव यू, आई आस्क्ड। नरेटर कहता है फिर मैंने उसको पूछा कि आप कोई पॉलिटिक्स क्या, मतलब आप कोई पॉलिटिकल फिगर हो या आप पॉलिटिकल फैमिली से हो या क्या है? आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, ही सैड, आई एम 76 years old, आई हैव कम 12 kilometers नाउ एंड आई थिंक नो आई कैन गो नो फर्दर। अब आपको पता लगा कि हाउ टायर्ड ही वॉज बिकॉज ही हैड ट्रेवल्ड 12 kilometers ऑन फुट, कच्चे रास्ते पर। और कहता है मैं पॉलिटिक्स के बगैर हूँ, मेरा कोई इसका मतलब ये है कि कहानी जो, जैसे हमने इसका जो पिंक बॉक्स में मैंने पढ़ा ना कि आम आदमी कैसे जंग में सफ़र करता है, वो कहता है कि मैं 76 years old हूँ, मैं 76 साल का हूँ, मैं क्या पॉलिटिक्स कर सकता हूँ? दिस इज़ नॉट ए गुड प्लेस टू स्टॉप, आई सैड। फिर नरेटर उसको कहता है कि ये जगह ठीक नहीं है जहाँ पर आप इस वक्त रुके हुए हो। If you can make it, there are trucks up the road where it forks for Totosa। कहता है अगर आप कहो तो मैं आपको वो जो टोटोसा जाने वाले ट्रक हैं तो उन पर बैठा देता हूँ। I will wait a while, he said, and then I will go। Where do the trucks go? वो उसको कहता है चलो मैं थोड़ी देर बैठता हूँ यहाँ पे, फिर मैं जाऊँगा। फिर वो उसको पूछता है नरेटर को, कहता है ये ट्रक्स कहाँ जा रहे हैं? टूवर्ड्स बारासेलोना, ये यहाँ पहुँचे हैं, टूवर्ड्स बारासेलोना। आई टोल्ड हिम, मैं उसको कहता हूँ कि बार्सिलोना की तरफ जा रहे हैं ये। आई नो ऑफ नो वन इन दैट डायरेक्शन। अब ओल्ड मैन उसको कहता है कि मैं तो उस साइड किसी को जानता ही नहीं हूँ, बट थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन वेरी मच। उसको बार बार क्या करता है, शुक्रिया करता है, ये लिखा हुआ है नीचे। ही लुक्ड एट मी ब्लैंकली एंड टायर्डली देन सैड हैविंग टू शेयर हिज वरी विद समवन। ये वाली लाइन है ये सारे, ठीक है। वो क्या करता है, फिर वो इसकी तरफ देखता है। अब हम आगे देखते हैं क्या है। द कैट विल बी ऑलराइट, आई एम श्योर, देयर इज नो नीड टू बी अनक्वाइट अबाउट द कैट बट द अदर्स। नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स। ये कहता है बिल्ली, फिर वो बार बार वही बात करता है, किसकी, ये यहाँ से कहता है उसके ऊपर बिल्ली तो ठीक होगी लेकिन बाकियों का क्या होगा। तो फिर उसको ये पूछता है, और नरेटर उसको पूछता है कि आपको क्या लगता है दूसरों के बारे में? वाई दे विल प्रोबब्ली कम थ्रू इट ऑल राइट, यू थिंक सो? वाई नॉट, आई सैड वॉचिंग द फॉर बैंक वेयर नाउ देयर वर नो कार्ट्स। ये उसको कहता है क्यों नहीं। वो जो ओल्ड मैन है उसको पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये वो ठीक होंगे? तो ये उसको कहता है नरेटर, हाँ क्यों नहीं, बट वट विल दे डू अंडर द एट्री व्हेन आई वाज टोल्ड टू लीव बिकॉज ऑफ दैट ट्री। अब जो ओल्ड मैन उसको कहता है कि अगर मैं वहाँ पे सेफ नहीं था तो फिर ये कैसे हो सकता है कि वो जो हैं वो मेरे जो एनिमल्स हैं वहाँ पे सेफ होंगे। डिड यू लीव द डाउ केज अनलॉक्ड, आई आस्क्ड। अब नरेटर कहता है मैंने उसको पूछा कि तुमने वो जो पिंजरा था ना उसका, ये यहाँ पर डाउ केज लिखा है ना,
असल में ये डव केज नहीं है, ये उन पिजन्स के बारे में लिखा हुआ है। यस देन दे विल फ्लाई। वो कहता है हाँ मैंने उनका पिंजरा तो खुला रखा था। तो फिर वो कहता है अच्छा फिर कुछ नहीं है, फिर तो वो उड़ गए होंगे। यस सर्टनली दे विल फ्लाई बट द अदर्स इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स ही सैड। वो कहता है चलो ये अच्छा है कि मैं उनके बारे में ना सोचूं। अब ये नरेटर उसको कहता है इफ़ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, आई अर्ज्ड गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ। वो उसको कहता है अगर आपने आराम कर लिया तो अब आप हिम्मत करो, खड़े हो जाओ और यहाँ से निकलो, आप वॉक करो। थैंक यू ही सैड एंड got to his feet, swayed from side to side and then sat down backwards in the dust। ये नरेटर कहता है कि उसके बाद क्या हुआ कि वो खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद उसने क्या किया, उसको हिम्मत नहीं थी ना, वो जब खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद उसने फिर वापस जाके बैठ गया वो, क्योंकि ही वॉज टू टायर्ड। आपको याद रखना है कि 12 किलोमीटर वो पैदल चल के आया है। इस 76-year-old मैन। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स ही सैड डेली। फिर वो दोबारा से वही बात करता है कि मैं सिर्फ एनिमल्स का वहाँ पे ख्याल रख रहा था, देखभाल कर रहा, बट नो लॉन्गर टू मी आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल। फिर वो बार बार एक ही बात करता है। देयर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम। अब जो नरेटर है वो कहता है उसके बारे में अब क्या किया जा सकता है, ये यहाँ पे है। इट वॉज ईस्टर संडे एंड द फैसिस्ट वर एडवांसिंग टूवर्ड्स द एब्रो। और ये जिस दिन का वाकया है ना, उस दिन ईस्टर संडे है। और ईस्टर संडे वो होता है जिस दिन ये क्रिश्चियन लोग ईस्टर वीक मनाते हैं। ये जो इनका फेस्टिवल होता है ये इसलिए होता है कि जो जीसस क्राइस्ट है उसको जब क्रूसीफाइड किया गया था उसके 3 दिन बाद वो दोबारा से मतलब वो इनके लिए एक इट्स फेस्टिवल ऑफ जॉय। लोग एक तरफ जो है वो खुशी सेलिब्रेट करने के लिए एब्रो की तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ एक आदमी जो है वो मौत का इंतज़ार कर रहा है। कहाँ पे, एक पुल के ऊपर, क्योंकि अभी जो है वहाँ पर जंग होने के, बम्बिंग और शेलिंग होने के आसार हैं। तो ये जो कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट आप समझते हो ना कि एक तरफ ज़िंदगी की अलामत है और दूसरी तरफ जो है वो मतलब निराशा है, मायूसी है ओल्ड मैन की। अब ये कहता है इट वॉज ए ग्रे ओवरकास्ट डे विद अ लूज वेयर with a low ceiling, so their plans were not up, and the fact that cats know how to look after themselves was all good luck that old man would ever have। और उसके बाद कहता है कि मैंने उसको फेट, तकदीर के भरोसे छोड़ दिया उस ओल्ड मैन को। और मुझे ये थोड़ा सा अंदेशा था कि ये जो है ये सेफ रहेगा, इसलिए क्योंकि उस दिन मौसम जो था उसमें बादलों के आसार थे। और इसको लगा जो नरेटर को कि भाई ये जो है ये बमबारी नहीं हो सकती क्योंकि बारिश है, बारिश के बादल छाए हुए हैं और जो हैं जहाज़ चलने के आसार बहुत कम हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी ओल्ड मैन एट द ब्रिज। ये इसका ट्रांसलेशन है जो मैंने आपको करके बताया है। अब इसमें जो ये जो कहानी है ना ये एक्चुअली सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो स्टोरी है ना ओल्ड मैन एट द बीच, ये सिंबॉलिक कैसे है। इसमें एक रिवर जो है उसकी बात की गई है। रिवर जो है इज़ द सिंबल ऑफ ओल्ड मैन जर्नी। ये सिंबल है किसका, याद रखना है आपने, ओल्ड मैन की जो ज़िंदगी का सफ़र है ना उसके बाद जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में पिजन्स की बात की गई है। पिजन जो है वो सिंबल है किसका, पीस एंड हारमोनी का। आपने देखा होगा कि बहुत से हम आर्मी के फंक्शन देखते हैं या पुलिस के, वो क्या करते हैं, कबूतर उड़ाते हैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले। वो किस लिए होता है, पीस एंड हारमोनी के लिए। यहाँ जो पिजन्स की बात की गई है उसका मतलब है कि ये जो पिजन्स हैं ये तो अपनी जान बचा सकते हैं। ये रेफ्यूजीज़ की तरह है जो जंग के दौरान क्या करते हैं, पलायन करते हैं, ट्रैवल करते हैं, किसी सेफ जगह जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। उसके अलावा गोड्स जो हैं, गोड सिंबल है किसका, आम आदमी का, कि जो कहीं नहीं जा सकता और जंग में सबसे ज़्यादा सफ़र होता है। सफ़र मतलब होता है SUFFER वाला सफ़र है, जिसमें क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ सिविलियन हु बिकम विक्टिम्स ऑफ वॉर।
ये उसका सिंबल्स है। ओल्ड मैन जो है वो सिंबल है किसका? डेंजर का। और ग्रे कलर और ब्लैक कलर जो बात की गई है ना उसके चेहरे के बारे में, वो है किसका? एक तो लोनलीनेस है उसमें, और उसके अलावा जो है वो ओल्ड एज है। दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी ओल्ड मैन एट द ब्रिज। होप यू हैव enjoyed this short story. Thank you very